Okay, ji. So today, as we've started with the 13th day of the English marathon, and today's lesson is very interesting and it's very easy one, right? It's very easy. Today's lesson is easy. And in today's lesson, we'll be talking about the most used tense, which is present continuous tense. Okay, it is one of the widely used tense because most of the time we are talking that what is happening now, and this tense is responsible for telling us that what is happening now. ठीक है जी. So and you see in the last of the slides we'll be doing obligations. Obligations का मतलब होता है वो चीजें जो कि हम पे फर्ज हो. ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या होता है? वो चीजें जो हम पे फर्ज हो या उनका करना हमारे लिए मस्ट हो. इसके लिए हमारे पास दो तरह के मॉडल वर्ब्स होते हैं. एक हमारे पास शुड होता है और एक मस्ट होता है. तो हम इन दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे, इन दोनों के सेंटेंसेस भी प्रैक्टिस करेंगे. एंड इन द सिमिलर वे एज वी नॉर्मली डू, लाइक we'll be taking affirmative, negative and interrogative sentences of both the models, and then we'll do the comparison, right? So without wasting a single second, I'm moving on. Okay ji. So what are you doing now? What are you doing now? क्या मतलब आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? Okay, so I know the answer for from everyone's side, like what we are doing. We are having a class of English. Okay, we are all learning spoken English in a course of 24 days from English Marathon 2024 by College of English. Okay, so what are we all doing now? We are studying, we are learning, we are speaking. ठीक है जी. Okay. Now a bit introduction for the continuous tense. Continuous tense को अगर मैं जैसे if I explain you in उर्दू, तो इसकी आसान सी पहचान आपके पास ये होती है कि जब आप कह रहे होते हैं कि रहा है, रही है, रहे हैं. हम खाना खा रहे हैं, वो जा रही है, हम गाना गा रहे हैं, तुम पढ़ रही हो. ओके, तो ये जो रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है ना, ये तीन जो वर्ड्स जिन सेंटेंसेस के आखिर में होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस के टेंस होते हैं. ठीक है, कॉन्टिन्यूअस के टेंस का मतलब ये होता है कि कोई काम जारी है, और अगर मैं इसके आगे प्रेजेंट लगा दूं तो इसका मतलब ऐसा काम जो कि प्रेजेंट में जारी है, ऐसा काम जो कि प्रेजेंट में जारी है. ठीक है, ठीक है जी. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर, एंड फॉर दिस आई वुड लव टू इनवाइट मिस वजीहा. वजीहा, will you please read the basic structure of this sentence so that we'll go. I know that most of you will be aware of this sentence because it's an easy one, right? But even then I want Wajia, please unmute yourself and read the slide for us. And you know how do we write it, Wajia? Like how do we read this slide? I am, like you can select any word. For example, speaking. I am speaking, you are speaking, we are speaking, they are. So you have to तेजी के साथ, or you can also take the verb sing, singing, as it is at in the bottom of the slide, right? जी वजिया. Present continuous. Yes. Affirmative. Be louder वजिया. Be happy. इतना खामोश और इतनी वो क्यों इमी है? तेज तेज बोले, जल्दी जल्दी. Subject I am. मैम खुद से कुछ भी लगा दे. जी जी, आप खुद से लगा दें, लेकिन एक ही वर्ब लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा टारगेट आपको वर्ब समझाना नहीं है, वर्ब याद कराना नहीं है. हमारा टारगेट आपको हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का करेक्ट कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस करवाना है. तो इट विल बी बेटर इफ यू टेक द सेम वर्ब फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स, राइट? Okay, ma'am. I am working. वेरी गुड. You are reading. We are singing. What I'm saying, if you have taken I am working, then say working with all the other subjects in helping verb. You are working, we are working, they are working, she is working. Okay, it's like that. I'm working, you are working, we are working, they are working. Very good. He is reading. Yes. She is reading. It is reading. No, okay, ma'am. you can say, you say it is moving. Okay, just take the verb moving. He is moving, she is moving, it is moving, Alex is moving, the bus is moving. Okay. Oh. Please, okay. Please repeat after me. Repeat. He is moving. He is moving. She is. It is moving. Alex is moving. Bus is moving. Okay, and now come to the negative side. Okay, for negative side I would like Mr. Nasir Mahmood. Nasir साहब कहाँ गायब थे आप पिछली दो क्लासों में? सबसे पहले तो आप ये बताइए, where were you in the last two classes?
Ma'am, I had some domestic issues, so that's why I Okay, but didn't. next time if you have any like urgent piece of work, so please do inform us. Like we always we are looking forward for all of our students in the class. ठीक है? तो इन्फॉर्म कर दिया Thank you. करें तो हमें थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि भाई ठीक है चलो उनको जरूरी काम था. आपको मिस कर ठीक रहे है. थे हम क्लास में. Thank you, sir. Thank you. ओके जी, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाइए प्लीज. I'm not reading. You are not reading. We are not reading. They are not reading. अच्छा, okay, now say stop. Now I want you to say the same sentence with aren't or amn't. Amn't, okay? Contractions के साथ बोलिए, इसको short forms के साथ. I'm not. I'm not working. Very good. You are not. You aren't working. We aren't Very good. working. They aren't Absolutely working. nice. Beautiful. Okay. Similarly, now negative with he, she, it, Alex, and bus. He isn't going. She isn't going. It isn't going. Alex isn't going. Bus isn't going. Absolutely good. Absolutely good. Beautiful. ठीक है जी. अच्छा, you can. They have also added one more word now. Now ये show कर रहा होता है कि आप अभी की बात कर रहे हैं, present की बात कर रहे हैं. ठीक है. Now इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे words हैं जो कि show कर रहे होते हैं आपको क्या कि ये अभी की बात हो रही है. Okay. Now I would like Miss Dua Fatma. Dua. जी दुआ. Yes, ma'am. जी. Now you have to make the questions with the same continuous tense को कैसे क्वेश्चन बनाएंगी? हेल्पिंग वर्ब पहले ले आएंगी सब्जेक्ट से और उसके बाद कोई सा भी वर्ब लगा देंगी. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सिंगिंग लगा दें. Yes, ma'am. Am I reading? No. Reading am for I regular- reading? Am I Ma'am, reading? Am जी, I reading very good. for fast? Okay, okay. अब आर के साथ I बनाइए am- डिफरेंट सब्जेक्ट्स. आर के साथ. जी दुआ बोलिए. Are you listening with me? Are you listening to me? Yes, अच्छा, विद ma'am. मी भी सही है, Are विद you मी भी सही है, listening? लेकिन दोनों के मतलब डिफरेंट है. आर यू लिसनिंग टू मी का मतलब है कि क्या तुम मुझे सुन रही हो, और आर यू लिसनिंग विद मी का मतलब है क्या तुम मेरे साथ सुन रही हो, यानी कोई थर्ड पर्सन बात कर रहा है और आप दोनों मिलकर सुन रही हैं. ठीक है. Yes, ma'am. ओके. Is he working for regular? दुआ मेरा बच्चा आपको टेबल, आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी जान? Yes, ma'am. देखो बेटा करना क्या है. देखो ये ग्रे रंग में दिया हुआ है कि एम के साथ जो सब्जेक्ट लगता है वो सिर्फ आई लगता है. एम Yes, sir. आई सिंगिंग. ठीक है, मैंने सिंगिंग चूज किया. आर के साथ ये तीनों लगेंगे. आर यू सिंगिंग, आर वी सिंगिंग, आर दे सिंगिंग. समझ में आई ये बात? Yes. इसके साथ Yes. ये सारे हेल्पिंग वर्ब लगते हैं. इज ही सिंगिंग, इज शी सिंगिंग, इज इट वर्किंग, इज एलेक्स सिंगिंग, इज द बस मूविंग. ठीक है, इस तरह पढ़ना है आपको Yes, स्टार्ट को. sir. प्लीज दोबारा कोशिश कीजिए दुआ बेटा. I am reading. ओके. You are listening. Are we listening? Are they listening? वेरी गुड. नाउ इट्स Is एब्सोल्युटली he- एक्सीलेंट. शाबाश. Yes, sir. Is he writing? Is she writing? Is it writing? Is Alex writing? Is Bus writing? ओके ओके, बस को हमने एज अ वो ले लिया. ठीक है, ओके ओके. ठीक है, अब इस सेंटेंस को अब और अच्छा बना सकती है नाउ लगा के. एम आई राइटिंग नाउ? आर यू Yes, sir. टीचिंग नाउ? आर वी गोइंग नाउ? आर दे हेल्पिंग अस नाउ? Yes, sir. इज ही राइटिंग? ठीक है, तो नाउ का वर्ड लगा के आप इसको और मजीद वो कर सकते हैं. ठीक है जी. ओके जी. नाउ देयर आर सम बेसिक रूल्स हाउ यू कन्वर्ट अ नॉर्मल वर्ब इनटू आईएनजी. फॉर दिस यू जस्ट हैव टू रिमेंबर वन थिंग इन योर माइंड, दैट वी ऑलवेज ऐड आईएनजी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म में आईएनजी ऐड नहीं होता. दिस इज द बेसिक रूल. बट देयर आर 2 or 3 more rules which we have to follow. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हम डायरेक्टली आईएनजी ऐड कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल स्पीक बिकम्स स्पीकिंग, गो बिकम गोइंग, teach teaching, wash washing, learn learning, eat eating, drink drinking, sleep sleeping. But sometimes
when the verb ends, the first form of the verbs, the base form of the verbs end in e, तो हमें e को ड्रॉप करना पड़ता है और then we add ing. ठीक है जी, रूल समझ में आ गया? Okay, I'm repeating again, listen. In most of the verbs, we directly add ing in the base form or the first form of the verb. लेकिन ज्यादातर 99% केसेस में जब वर्ब के आखिर में ई आता है तो हम ई को हटा देते हैं और फिर ing लगाते हैं. ठीक है, कमिंग की स्पेलिंग देखिए, कमिंग की स्पेलिंग में ई नहीं नजर आ रहा होगा आपको. राइटिंग की स्पेलिंग देखिए, देयर इज नो ई इन दिस वर्ड. ड्राइविंग, डाइविंग, राइडिंग, स्माइलिंग, वाइपिंग, टाइपिंग. Okay, so this is the rule. This is called what? We remove the e and then we add ing. This is a basic rule. Okay, then we have this further to most. अगर कोई verb जो है that ends in y, अगर y पे उसकी ending हो रही है with y, तो we just add ing. But कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनमें हमें लास्ट लेटर को डबल करना पड़ता है और फिर उसके बाद हमें उसमें ing लगाना पड़ता है. ठीक है, by adding ing to the verbs with short vowels. देखिए अब ये थोड़ी सी कहानी लंबी हो जाएगी, but even then I want all of you to tell that जब हम बच्चों को phonics पढ़ाते हैं ना, मॉन्टेसरी में रीडिंग सिखाते हैं, तो there are two types of vowels. ठीक है, vowels आपको सबसे पहले तो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि 26 लेटर्स है इंग्लिश वाले उसमें. ठीक है, 21 जो आपके पास है वो कॉन्सोनेंट्स है. ठीक है, और 5 जो है आपके पास क्या है, वाउल्स है. AEIOU, राइट. अच्छा, अब इन वाउल्स से आपके पास दो तरह की आवाजें निकलती हैं. एक आवाज कहलाती है शॉर्ट वाउल्स, ठीक है, और एक आवाज कहलाती है लॉन्ग वाउल्स. शॉर्ट वाउल्स वो आवाज होती है जो हम बच्चों को फोनिक्स में पढ़ाते हैं. जैसे हम यू को अ पढ़ाते हैं, अ. ठीक है, आई को ई पढ़ाते, ई. आई की आवाज क्या होती है, ई. पिन, पिन, टिन, टिन. ओके, आई की आवाज क्या है, ई की आवाज निकलती है. लेकिन लॉन्ग वाउल का मतलब होता है कि जो अल्फाबेट का नाम है उसी नाम वाली आवाज निकले. मसलन यू की आवाज क्या निकले, यू ही निकले. ठीक है, तो वो लॉन्ग वाउल कहलाता है. जैसे यूनिफॉर्म. ठीक है, और इसी तरह बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हम यू की आवाज के यूनिवर्सिटी वैसे ही निकालते, तो वो क्या कहलाते हैं, लॉन्ग वाउल्स कहलाते हैं. और शॉर्ट वाउल्स होते हैं जो उनकी फोनेटिक आवाज होती है ना, जो उनकी आवाज होती है. देखिए, एक उनका नाम है, जैसे एक लेटर है फॉर एग्जाम्पल ए, उसका नाम ए है और उसकी आवाज क्या है, ए. इसी तरह एक लेटर है बी, उसका नाम क्या है, बी, लेकिन उसकी आवाज क्या है, ब, ब. इसी तरह एक लेटर है पी, उसकी आवाज क्या है, प, प. ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, ये दो तरह के हमारे पास. अगर किसी वर्ड में जो लास्ट लेटर है वो कोई कॉन्सोनेंट है और उससे पहले कोई शॉर्ट वाउल आवाज वाला वॉवल आ रहा है, तो हम उसके लास्ट लेटर को डबल करके फिर उसमें ing लगाते हैं. कट बिकम कटिंग, पुट बिकम पुटिंग, हिट बिकम हिटिंग, स्विम बिकम स्विमिंग, run become running, get become getting, set become setting, and step become stepping. I think this concept is clear. Please मुझे chat box में बताइएगा ताकि मैं आगे बढ़ूं, please. जी, I'm waiting for your reply in the chat box. Is this concept clear? Okay जी, मुकद्दस. Okay, thank you so much for replying. Anybody else? Okay, Nasir Sahab, good, brilliant, everybody, जबरदस्त. Okay. डबल कैसे करेंगे वजिया, आई एम रिपीटिंग. ओके, वजिया इज आस्किंग प्लीज टेल द रूल अगेन. देखिए वजिया, आप जो जितने भी इंग्लिश लेटर्स है ना, इनकी खास आवाजें होती हैं. ठीक है, जिन्हें हम फोनिक्स कहते हैं. ठीक है, और इनके नाम भी होते हैं, उनको हम लॉन्ग वाउल्स कहते हैं. लॉन्ग वाउल्स का मतलब ये होता है कि वो अपनी आवाज ही निकालें. मसलन जैसे बिफोर, बिफोर में ब की आवाज नहीं आ रही बल्कि बी की आवाज आ रही है, लॉन्ग वाउल है बिफोर. ठीक है, ब, बॉल, बॉल में शॉर्ट आवाज आ रही है. B4 में पूरा बी का लफ्ज मैं बोल रही हूँ, मैं बफोर नहीं बोल रही हूँ. ठीक है जी, तो जहां पे शॉर्ट आवाज होती है, यानी अगर बी की आवाज ब है, आई की आवाज ई वाली आवाज आएगी, तो वहां पे हम क्या करेंगे, लास्ट लेटर को डबल करेंगे. ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें ing लगाएंगे. ठीक है, ओके जी. मैम बाकी तो मैम जी. सब समझ आ गया था बाकी, लेकिन डबल का मतलब समझ नहीं आ रहा कि डबल कैसे करेंगे. जानू, डबल का मतलब ये है कि जैसे ये CUT कट है, तो जो लास्ट लेटर है टी, उसको आप 2 दफा लिखेंगे और फिर ing ऐड करेंगे. ओके मैम, ओके, अब ठीक है समझ आ भैया. गया. ओके ओके. वो it's a nice thing that you are asking question. It means you are trying to understand. I really appreciate those students who ask questions in the class. Thank you भजिया. हो सकता है आपके पूछने से दूसरों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मिस क्या डबल डबल की जा रही है. ठीक है, ओके. ठीक है, तो रनिंग आप सब में देख सकते हैं, डबल टी, डबल टी, डबल टी, डबल एम, डबल एन, डबल टी, डबल टी, डबल टी, डबल. ओके ओके जी, आई एम साउंडिंग लाइक अ कंडक्टर. ओके, खैर
Okay, ji. So now we have Muqaddas. And okay, before Muqaddas, I would like Mr. Rizwan. Rizwan Sahab, Rizwan Mahmood Sahab. Please unmute yourself, Rizwan. Rizwan Sahab, हम आपका इंतजार कर रहे हैं. Please unmute yourself. चले, रिजवान साहब को मेरे ख्याल से थोड़ी देर बाद डिस्टर्ब करते हैं. ओके जी. मुकद्दस, अगेन बैक टू यू. मुकद्दस, प्लीज स्टार्टिंग जो है ना 5 सेंटेंसेस आप पढ़िए, 5 to 6 क्विक. I am listening to you now. We are flying to India tonight. Harek is performing in the culture show. Speak louder, please. Students are waiting for their examination these days. I am not disturbing others. Very good. Okay. Okay, now Rizwan Sahab, are you able to unmute yourself now? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. रिजवान महमूद साहब. जी. Hello. Mr. Rizwan, can you hear me? जी मिस्टर रिजवान. जी मैम, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आपकी रिजवान साहब आवाज है. कैसे हैं रिजवान साहब आप? यस मैम. कैसे हैं आप? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, आप ठीक ठाक हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मैम. अच्छा, ये बताइए कि आप हमारी जो आगे के सेंटेंसेस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ? जी मैम, क्लियर है. बेहतरीन. ओके, लास्ट के जो 7 सेंटेंस आई थिंक यहाँ पे उन्होंने छोड़ा है, ये आपने रीड करने रिजवान साहब हमारे लिए. ओके मैम. जी. यू आर नॉट वर्किंग हियर. अच्छा Rizwan Sahab, I think you were not present in some of the previous classes. So I have told my student, or I have emphasized my student to use the contraction forms to sound more like the natives, right? तो आप are not नहीं पढ़ेंगे, आप aren't पढ़ेंगे. आप is not नहीं पढ़ेंगे, आप isn't पढ़ेंगे. Okay? जी जी. You aren't working here. Very good. Charu is not studying well. Charu isn't studying well. Sorry ma'am. Charu isn't studying well. Good. Are your kids studying well? Very good. Is your mobile working properly? Okay. Are they feeling better after the vacation? No, क्या हो गया रिजवान साहब? गौर से जरा अपनी आंखों की दूरबीन को सेट करेगी. क्या वर्ड है? इट्स नॉट वेकेशन, दिस इज वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन पता है ना क्या होता है? पता है रिजवान साहब? नहीं मैम, नहीं पता. देखिए, वैक्सीनेशन मेडिसिन नहीं, हाँ मेडिसिन है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ. देखिए, हम मेडिसिन कब लेते हैं? जब हम बीमार हो जाते हैं. ठीक है. वैक्सीनेशन ऐसी मेडिसिन होती है जो कि बीमार होने से पहले ली जाती है, कि खुदा ना खास्ता वो बीमारी हो ना जाए. जैसे खुदा ना खास्ता हम में से किसी को कोविड नहीं था, लेकिन हम लोगों को कोविड के लिए वैक्सीनेट किया गया. ठीक है. बिल्कुल. अच्छा, लास्ट सेंटेंस पढ़िए रिजवान साहब. Am I troubling you? जी, ट्रबलिंग का मतलब क्या होता है रिजवान साहब? ट्रबल से ये ट्रबल से ये वर्ड निकला. ट्रबल का मतलब क्या होता है? तंग करना. ट्रबलिंग, क्या मैं आपको तंग कर रहा हूँ? ठीक है. Okay, चलें. Thank you so much, Mr. Rizwan. Thank you so much. Okay जी. So now come to the uses of present continuous tense. हमने structure पढ़ लिया, हमने उसके negative, affirmative और interrogative तीनों तरह के sentence का structures डिटेल में पढ़ लिया. Now about the usage. किस किस situations में हम present continuous को use करते हैं? We use present continuous tense to show something is happening now. अभी जो चीज हो रही है इस लम्हे में,
उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वॉचिंग अ मूवी नाउ, ही इज डूइंग हिज होमवर्क राइट नाउ, दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड नाउ, Arul and his family are going to a party now. I am talking with my pen pal at the moment. पेन पॉल कौन होता है? पहले जमाने में ना, आपको खैर माशाल्लाह से ईमेल और उसका चैटिंग का दौर है। पहले क्या होता था, वो खत के जरिए जो दोस्ती करते थे, दे वर कॉल्ड पेन पॉल्स, राइट। पॉल का मतलब एक तरह का फ्रेंड होता है। Many people are suffering from cancer at this time. So now all these words, now, right now, at the moment, or at this time, okay, they all are showing that we are in the present. And this ing form is with is mr is showing कि वो काम जो है अभी हो रहा है, ठीक है जी। तो आई होप कि दिस इज क्लियर कि पहला यूजेज क्या है हमारे पास, टू शो समथिंग इज हैपनिंग नाउ, ठीक है। अब नरेट अ सिचुएशन, नाउ वी हैव गॉट अ सिचुएशन। नरेट का मतलब होता है बयान करना या बोलना। टेल अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू इन योर हाउस राइट नाउ। आपको क्या करना है, मैं तस्वीर को बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। ये एक हाउस की एक तस्वीर दी हुई है इन्होंने, ठीक है, एंड यू कैन सी द पिक्चर, आई थिंक ओके। तो जी तस्वीर क्लियर है सबके लिए? जी तस्वीर क्लियर है, आई होप। Yes, ma'am. ओके जी, ओके जी, ठीक है जी। तो अब सबने जो एक एक सेंटेंस से दो दो सेंटेंस बोले। ईशा, हम स्टार्टिंग विद यू। लुक एट द पिक्चर एंड से समथिंग इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर? व्हाट इज हैपनिंग? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे आदमी कुर्सी पे या सोफे पे बैठा हुआ है, ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, लड़की खड़ी हुई है, ठीक है, और इसके जो आप कह सकते हैं खातून है, वो क्या, आई थिंक शी इज सर्विंग समथिंग, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं। जी ईशा, Children are प्लीज playing बी लाउडर। ईशा, बी लाउडर। Children are playing a toys. अगेन रिपीट द सेंटेंस Children लाउडर। are playing a toy. अगेन Children are playing a toys. रॉन्ग। क्या मिस्टेक है? खुद अपनी मिस्टेक पकड़िए। Children are play. No, children is already plural. Why you are adding a s in it? हमने क्या पढ़ा था? चाइल्ड सिंगुलर है और चिल्ड्रन प्लूरल, ठीक है। तो चिल्ड्रन आर, चिल्ड्रंस नहीं होगा, ओके। Children are playing a toys. चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद अ Toy. टॉय, ओके जी, वेरी गुड। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि लैंप लटके हुए हैं छत से, कैसे बोलेंगे? This is still. मैम इसका नहीं समझना है मैम। इसका दिस इज स्टेयर एंड नो देयर इज अ स्टेयर, दैट्स ओके, बट आई एम सेइंग, अच्छा चलिए ये बनाइए कि जो ग्लोब है, वो ग्लोब जो है वो शेल्फ के ऊपर रखा हुआ है। द ग्लोब ये कॉन्टिन्यूस का नहीं है ये टेंस, मैं आपसे जर्नली पूछ रही हूँ कि अगर आप ये कहना चाहती हैं कि ये ग्लोब रखा हुआ है तो आप कैसे कहेंगे? दिस इज शेल्फ ऑन द ग्लोब। देयर इज अ ग्लोब ऑन द शेल्फ। देयर ओके ओके, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं कहूँ जैसे ये फॉर एग्जांपल ये लैंप है, तो जो दो लैंप जो है वो छत से लटक रहे हैं, तो इसको आप कैसे बोलेंगे? मैम छत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखिए छत, ईशा बेटा, दो तरह की छतें होती हैं। एक वो होती है जो हमारे कमरे के ऊपर हम देखते तो हमें छत नजर आती है, ठीक है, इसे कहते हैं सीलिंग, CEILING, CEILING, ठीक है, सीलिंग। इसीलिए ये जो पंखे जो हम छतों पे लगाते हैं ना, इनको कहते हैं सीलिंग फैंस। सुना है कभी हमने अपने फादर वगैरह से, सीलिंग फैन खराब हो गया, ठीक है। और जो छत हम जिसके ऊपर जाते हैं बारिश में नहाने और पकौड़े खाते हैं, उसे हम कहते हैं रूफ, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे जो यूज करेंगी, हैंगिंग का वर्ड यूज करेंगी, लैंप का वर्ड यूज करेंगी और सीलिंग का वर्ड यूज करेंगी, ठीक है जी। जी श्याम। दिस इज No, the lamps are सीलिंग hanging and ceiling on the wall. नहीं, the lamps are hanging from the ceiling. फिर से बोलिए, repeat after me. lamps are hanging and ceiling on the wall. The lamps are hanging from the ceiling. From ceiling. Okay,
ओके अच्छा जी, और मुझे तो इस तस्वीर में बहुत क्लियरली बहुत कुछ नहीं रहा है। अच्छा आप ये कह सकते हैं कि ये Rolling औरत, pin. अच्छा फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि खातून जो है खाना सर्व कर रही हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे आप? Lady is serving a food. वेरी गुड, इज सर्विंग द फूड। जब हम खास चीज की बात करते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा हम मैम आप इसको ये रोलिंग पिन समझे थे, हम हमें जैसे लगा ये ठीक है, ये वो कंफ्यूजन हो सकता है। अच्छा वी हैव अनदर पिक्चर एंड थैंक यू वेरी मच ईशा फॉर पार्टिसिपेटिंग। नाउ आई विल नीड somebody else to describe what is happening. This is more interesting picture, like we've got a lot of people and they are doing a lot of different stuff, so like we can just have an idea. Is the picture clear to everybody? ठीक है जी, क्लियर है? पिक्चर क्लियर है डियर? ओके ओके जी, तो आई एम स्टार्टिंग विद मुकद्दस जी। मुकद्दस, कोई से भी दो सेंटेंस बोलिए कॉन्टिन्यूस की इस तस्वीर को देख के। The boy is swimming. द बॉय इज Swimming. स्विमिंग। ओके ओके ठीक है जी, ओके जी। अच्छा इस लड़के के बारे, इफ आई वांट टू से समथिंग मुकद्दस अबाउट दिस बॉय और दिस चाइल्ड, व्हाट विल यू से? कॉन्टिन्यूस का जुमला यूज करना याद रखिए। This child is standing on a pencil. he is trying, यूं तो पेंसिल तो खैर एक वो है, he is trying या he is diving into the water। अब डाइव का मतलब समझ लीजिए, DIVE डाइव। डाइव का मतलब होता है छलांग मारना, लेकिन नॉर्मल फिर आप कहेंगी कि जंप भी मैं यूज कर सकती हूँ। डाइव और जंपिंग में ये फर्क होता है कि डाइविंग में आपके हाथ नीचे होते हैं और पांव ऊपर होते हैं, जबकि जंपिंग में आपके आप सीधे होते हैं, ठीक है। जब आप, तो लिहाजा डाइविंग का वर्ड जो है स्विमिंग पूल्स वगैरह पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आप उसमें छलांग मारते हैं तो आपके हाथ नीचे की तरफ होते हैं और टांगे ऊपर की तरफ। द बॉय इज डाइविंग इन द पूल, खाना ठीक है खाना जी, ओके ठीक है। थैंक यू मुकद्दस, थैंक यू मुकद्दस। ओके जी नासिर साहब, जी नासिर साहब, आई वॉन्ट यू टू से समथिंग अबाउट दिस। व्हाट इज दिस? I don't know, ma'am. This. Oh, yes, dolphin. Yes, ma'am. इट सीम्स डॉल्फिन। ओके, सो Yes, आप क्या yes. कहेंगे? डॉल्फिन अगर तैर रही है तो आप क्या कहेंगे? इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Dolphin is swimming in the. Dolphin doesn't swim in pool. Obviously, dolphin swim No, in the. it's just you see, it's just a funny picture. You see, शेफ भी जो है वो पूल में खाना नहीं बना रहा होता, but just to give you ideas and to make you speak up, such kind of you see a picture has been taken or selected, right? So okay, so the dolphin is swimming in the pool, right? Okay, ji. And what about this boy? What is he doing? He is playing with his toy. Who is his friend? His ये क्या चीज है? ये कथन स्नोमैन नहीं है, चल रहा स्नोमैन। Okay, Okay, this snowman. boy is looking, the boy is looking at the snowman. Okay, the boy is playing with the snowman, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ओके ओके जी, अब हमारे पास है ये लड़की जो है ये यहाँ से झांक रही है ना पूल में, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? She is diving. ओ ओ ओ ओ एक्सक्यूज मी, डाइविंग का मतलब तो होता है पानी में छलांग मारना, वो तो आराम से खड़ी है। सर नासिर साहब क्या कर रहे हैं She आप? she is looking to the pool. देखिए लुक करने यानी देखने में और झांकने में फर्क होता है। Exact but पता नहीं है मैम पीप जानने पीप पीप का वर्ड यूज करते हैं, PEEP पीप। Peeping. She is यस, peeping. शी इज पीपिंग, शी इज पीपिंग Yes. इनटू द पूल, और ठीक है ओके जी। देन वी हैव गॉट दिस कैट। व्हाट इज द कैट डूइंग सर नासिर? Cat is pulling ये इसके हाथ में क्या चीज है? रस्सी है. ओह इट्स अ फिश रॉड। द कैट इज ट्राइंग टू कैच अ फिश। Catch a fish. Okay. ठीक है, और ये जो शेफ साहब है, व्हाट इज द शेफ डूइंग इन द पूल? Chef is cooking. yes, he's starring the water, starring चमचा चला रहा है वो, ठीक है ओके। सो इट वाज सम काइंड ऑफ लाइक इंटरेस्टिंग, एंड दिस इज ऑक्टोपस साहब जो है। व्हाट इज ऑक्टोपस? और नासिर साहब ऑक्टोपस क्या कर रहा है? Octopus want to jump into the pool. नो नो, सीटी बजा रहा है, सीटी बजा रहा है। हाउ विल यू से दैट इन इंग्लिश? सीटी बजाना में. हाँ, सीटी बजाने के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। सीटी को इंग्लिश में कहते हैं विसल, ओके। और उसको Whistle, बजाने yes. के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो कहते हैं ब्लो। Whistling. ब्लो,
No, no, blow. Yes. Blow the whistle. Okay, thank you. ठीक है. Blow So now whistle. how will you say? Octopus is blowing the whistle. Very good. The octopus is blowing the whistle, not vessel. Vessel का मतलब तो कोई बर्तन होता है. ठीक है. Whistle. Very good. ठीक है. So I think it was very interesting. You can. And what about this? I think it's a kind of what is platypus और कोई ये वो है walrus type पे मुझे animal लग रहा है. और वो क्या कर रहा है? गिटार बजा रहा है. And a lot of mice they are dancing around. माइस जो होता है, माउस का हमने प्लूरल पढ़ा था, क्या होता है? माइस. माइसिस नहीं होता, माइस होता है. ठीक है. थैंक यू सो मच नासिर साहब. ओके, सो नाउ आई एम मूविंग टू अनदर स्लाइड, राइट? एंड दिस इज लाइक दिस इज मैंने आपसे कहा, एक बात मैंने आपको ये बताई कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो व्हाट इज हैपनिंग नाउ. नाउ दिस इज द सेकंड यूजेज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, दैट इट शो लॉन्गर एक्शंस इन प्रोग्रेस नाउ टेम्परेरीली. क्या मतलब? ये ऐसे लॉन्ग एक्शंस को शो करता है जो कि अभी प्रोग्रेस में है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं यार मैं फार्मेसी पढ़ रही हूँ, तो मैं पढ़ तो अभी भी रही हूँ, लेकिन ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जो कि एक अरसे बाद कंप्लीट होगा, और अभी कुछ वक्त तक वो क्या है? जारी रहेगा. ठीक है. तो अगेन, टू शो लॉन्गर एक्शंस इन प्रोग्रेस. प्रोग्रेस का मतलब होता है तामीर या उसके यानी आगे बढ़ने के सेंस में. ठीक है. टू शो लॉन्गर एक्शंस इन प्रोग्रेस नाउ टेम्परेरीली. अभी वो टेम्परेरीली एक्शन में है, हो रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में वो कंप्लीट होंगे. ठीक है जी. ओके जी. ओके, नाउ वी हैव गॉट ईशा. ईशा डियर, स्टार्टिंग 3 सेंटेंसेस पढ़ेंगी आप. I am studying to become a teacher this day. She is reading the novel The Great and Expedition this day. No. Hold your horse, my baby. The Great Expectation is the name of a book. It's a novel. Okay, बहुत मशहूर novel है, The Great Expectation, and it is a part of the curriculum of in most of the schools in grade 6 or 7, 8 में Great Expectation पढ़ाया जाता है. ठीक है. अच्छा, अब आपने जब पढ़ना है ना सेंटेंस को, तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन को वर्ड आपको साथ बोलना पड़ेगा. शी इज रीडिंग द नॉवेल, हल्का सा पॉज देंगी. द ग्रेट एक्सपेक्टेशन, फिर हल्का सा पॉज, दीज डेज. ठीक है. अब दोबारा पढ़िए प्लीज. She is reading the novel The Great Expedition this day. These days. Very good. Okay. Yes. We are preparing for the exam this day. Very good. Thank you so much. Yes. जी रिजवान साहब, अब आपको भी मौका देते हैं. जी रिजवान साहब, लास्ट 3 सेंटेंसेस, बल्कि 2 सेंटेंसेस. Students are practicing English these days. Very good. The opposition party is the opposition party is protesting against the decision of our government these days. Very good. क्या मतलब हुआ इस जुमले का? मतलब बताएंगे रिजवान साहब? मैं इसका मतलब है कि जो अपोजिशन पार्टी है वो हमारी गवर्नमेंट के फैसले के जो खिलाफ है ना, वो धरना दिया हुआ है. बेहतरीन, जबरदस्त, एक्सीलेंट, वेरी गुड. थैंक यू सो मच रिजवान साहब, अमेजिंग. ओके जी. ठीक है. तो हमने अब हम थर्ड पढ़ रहे हैं. ठीक है. थर्ड यूज. पहला यूज हमने क्या पढ़ा? दैट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस आर यूज्ड टू शो व्हाट इज हैपनिंग नाउ. सेकंड हमने क्या पढ़ा? टू शो लॉन्गर एक्शंस इन प्रोग्रेस नाउ टेम्परेरीली, यानी वो होंगे तो बाद में मुकम्मल, लेकिन अभी जारी है. ठीक है. और दीज डेज का वर्स इसमें काफी हेल्प करता है आपको. नाउ टू एक्सप्रेस अ प्लान एक्शन इन नियर फ्यूचर. आप एक नियर फ्यूचर का मतलब है जैसे करीब तरीन, बहुत ज्यादा दूर नहीं, कि मैं 10 साल बाद की बात कर रही हूँ. ठीक है. टू एक्सप्रेस अ प्लान्ड एक्शन, कि मैं ये करना चाहती हूँ. आई एम मीटिंग माय फ्रेंड ऑन 3rd February. इसका मतलब है कि आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि आप 3rd February को अपने दोस्त से मिलेंगी. ठीक है. शी इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुमारो. ये तय हो गया. देखिए, टुमारो इज अ वेरी नियर फ्यूचर, मतलब कल. ठीक है. वी आर विजिटिंग आवर पेरेंट्स नेक्स्ट वीक, ये भी करीब है. दे आर कंप्लीटिंग दिस कोर्स नेक्स्ट मंथ, ये भी करीब. नेक्स्ट मंथ अगले महीने की बात है. धानु इज फ्लाइंग टू कैनेडा इन अ कपल ऑफ डेज. कपल ऑफ डेज का मतलब क्या? कुछ दिनों में. कपल ऑफ वीक्स कुछ हफ्तों में. कपल ऑफ मंथ्स कुछ महीनों में. कपल ऑफ ईयर्स कुछ सालों में. ठीक है जी. तो ये बहुत अच्छे सेंटेंसेस है. आई वांट दुआ टू रीड ऑल दीज सेंटेंसेस. दुआ क्विक पढ़ना है, बिल्कुल रुकना नहीं है. ठीक है दुआ? चलें फुल एक्सेंट में. चले, शाबाश मेरा बच्चा. I am meeting my friend on 3rd February.
She Good. is celebrating for birthday हर tomorrow. बर We हर हर are हर हर बर्थडे फॉर कहाँ लिखा है? She is celebrating her birthday tomorrow. We are visiting our parents next week. Good. They are Very good. completely discussed next month. They are, excuse me दुआ, ये वर्ड दोबारा पढ़िए. They are, क्या पढ़ा आपने? They are completely. No, ली कहाँ है? They are completing, TING, ting. They are completing. They Yes. are completing they are completing this course next month. Very good. Zabardast. Excellent dua. Last sentence. Yes. Way is flying to Canada in a couple of days. Very good. Brilliant. Dua, after the class, you have to read all the sentences in the slide at least 2 or 3 times. Okay? Not dua, it is for everyone. मैं डॉक्टर बन गई हूँ और ये सुबह शाम की गोली है, दिन में 3 दफा खानी है सबने. ओके, अगर आपको इंग्लिश में. चलो. ओके, नाउ बिकम अ न्यूज रिपोर्टर एंड टेल द लाइफ न्यूज अबाउट. अच्छा देखिए, एक बात का वो करें, ये LIVE को हम पढ़ते हैं लिव पढ़ते हैं ना, कि वेयर डू यू लिव, उसकी स्पेलिंग भी सेम होती है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको लाइव पढ़ा. क्यों? क्योंकि मैंने इसके कॉन्टेक्स्ट से, इस बात के मकसद से जान लिया कि अगर वो रिपोर्टर जो है न्यूज पढ़ रहा है तो वो लाइव, यानी कि जो उस वक्त हो रहा होता है, लाइव का मतलब समझते हैं ना, टीवी में क्रिकेट मैच लाइव देख रहे होते हैं, यानी कि जहां पे हो रहा है हम डायरेक्टली, हम यूट्यूब में जैसे हमारी क्लास जो है ये लाइव स्ट्रीम हो रही है, यानी अभी हमारे साथ कॉन्टेम्परेटली ये जो वीडियो है ये यूट्यूब पे भी प्ले हो रही है. ठीक है, तो लाइव का मतलब होता है साथ साथ. ठीक है, या आप कह सकते हैं कि जिस वक्त ये वहां पर हो रही है तो यहाँ पे भी सेम टाइप पे हो रही है. तो यहाँ पे मैंने इसको लिव नहीं पढ़ा, बल्कि इसके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक मैंने इसे लाइव पढ़ा. वरना मेरे पास स्टूडेंट्स का ये सवाल आता है कि भाई आपने इसको लिव क्यों नहीं पढ़ा? तो LIVE लिव है. इट इज नॉट लिव, इट इज लाइफ. कुछ ऐसे वर्ड्स इंग्लिश में है जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से स्पेलिंग सेम है लेकिन उनको पढ़ा लग जाता है. ठीक है, वो आपके एडवांस कोर्स में आते हैं. तो बिकम अ न्यूज रिपोर्टर. अच्छा, अब आप बोलेंगे आ लिखा है और न्यूज लिखा है. हम ये सिंगुलर प्लूरल की स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं कि न्यूज जो है वो सिंगुलर है. N for north, E for east, W for west and S for south. ये न्यूज का जो वर्ड है ये इन 4 डायरेक्शंस जो हैं, जो हमारी सिमतें हैं, मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब, इनके नाम पे रखा गया, यानी हर तरफ से आने वाली चीज, खबर. ठीक है, तो बिकम अ न्यूज रिपोर्टर एंड टेल द लाइव न्यूज अबाउट अ हाउस ऑन फायर. फॉर एग्जाम्पल, खुदा ना खासा कोई घर जल रहा है, तो आप उसको किस तरह लाइव रिपोर्टिंग उसकी करेंगे? कोई मेरी कर सकता है कोई वजीहा? विल यू प्लीज ट्राई वजीहा? वजिया को मैं अनम्यूट कर देती हूँ. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी, वजिया प्लीज कोशिश करेंगी आप? मैम क्या? देखिए, किसी घर में आग लग गई, खुदा ना खासा किसी घर में आग लग गई है, ठीक है ना, और आपने रिपोर्टिंग करनी है वहां पे. जो नहीं रिपोर्टर पास सामने माइक लेके खड़े होते हैं, ये देखें जनाब इस घर में आग लगी हुई है और ये सब शोले जो है वो बराबर वाले घर को भी कवर कर रहे हैं. इस तरह जो आप रिपोर्टिंग करते हैं, तो अगर आपको इस तरह रिपोर्टिंग करने को कहा जाए तो आप कैसे करेंगे जी? जी, कोई कोशिश करेगा या मैं बताऊं? आप बता. चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ. ईशा, विल यू ट्राई? ईशा, आपको ट्राई करना है? ओके, ईशा इज आस्किंग, सो आई विल गिव अ चांस टू ईशा. वेयर इज ईशा? ईशा कहाँ चली गई है? यस, ईशा जी. ईशा जी कोशिश करेंगी डियर? Yes, ma'am. जी प्लीज. One day I was returning to नो home. नो 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 नो, नॉट इन दिस वे. जब रिपोर्टर होते हैं वो कैसे कहते हैं? आई एम हियर ऑन द ग्राउंड एंड द सिचुएशन इज डेंजरस. लुक एट द हाउस बिहाइंड मी. द हाउस इज बर्निंग विद हाई फ्लेम्स. इस तरह बोलते हैं ना, ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि वन डे में गुजर रही थी तो आग लगी हुई थी. रिपोर्टर ऐसे बोलते हैं? रिपोर्टर किस तरह बोलते हैं कि मेरे पीछे जो जलता हुआ घर देख रहे हैं, ये घर एक सिलेंडर के फटने की गलती की वजह से कई जानों को ले चला है. इस तरह नहीं बोलते लाइफ रिपोर्टर्स? Yes, ma'am. इस तरीके से. हाँ, इस तरह का बोले जी. मैम स्टार्टिंग आप करने. अच्छा, जैसे आप बोले फ्लेम्स आर
engulfing the 2-story residence with fire. Flames मतलब शोले, और engulfing, engulf मतलब लपेटे हुए किस चीज को, एक 2 मंजिला घर को, ठीक है। और आगे क्या बोल सकती हैं आप? I saw on the way on house on fire. I rushed toward the burning a house. ओके, Uh, आप ये कह सकती हैं वो आग फैल रही थी, कैसे बोलेंगी ईशा? मैं खेल रही थी मैम. नहीं नहीं आग बढ़ रही थी, फैल रही थी। फैलने की इंग्लिश क्या होती है ईशा? मैम स्प्रेड, स्प्रेड। हम बोलेंगे when I reached there I saw a many people outside this house. वेरी गुड, वेरी गुड। एंड द फायर वाज स्प्रेडिंग, यानी आग फैल रही थी। एवरीबॉडी वाज ट्राइंग टू पुट ऑफ द फायर। पुट ऑफ मतलब बुझाने की कोशिश कर रहे थे सब लोग। नेबर्स आर टेलिंग दैट द फैमिली fire breaker. वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। एंड मैम बस इतना. okay, the family is trying to escape from the burning house, यानी उसके घर में जो लोग मुकीम थे, जो फैमिली थी, वो क्या बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। okay, okay, thank you Isha, thank you so much. Okay, now so then we have another situation in which some people are protesting against load shedding, a very common thing in Pakistan. How will you say that a crowd of people is gathering in the ground to protest against the shortage of electricity, and you can say the load shedding or something like that, ठीक है। तो आप इसमें कुछ जुमले अपनी तरफ से कोशिश करके इसको लिखिए एंड देन जस्ट ट्राई टू बिकम अ रिपोर्टर। और आप एक और काम ये कर सकते हैं कि आप गूगल करके कुछ सेंटेंसेस निकाल लें, और अगेन जस्ट होल्ड अ काइंड ऑफ अ थिंग, अ माइक और समथिंग लाइक अ मार्कर or anything in your hand and pretend that you are a reporter. देखिए situations में इंग्लिश बोलना अलग होता है। आप तो यहाँ क्लास में बैठे हुए हैं, सोफे के ऊपर पानी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं और क्लास ले रहे हैं, लेकिन जब आपके पास सिचुएशन आएगी ना, तो उस वक्त फिर आपको बोलना। तो कोशिश किया करें कि आप अपने आप को जितना भी सिचुएशन के अंदर ढाल सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रोल प्ले कर रहे हैं फॉर ग्रीन ग्रोसर, सब्जी बेचने वाले का, तो ट्राई टू कीप सम वेजिटेबल्स इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, ताकि आपको वो फील आए कि मुझे किस तरह करना है। और ये बहुत अच्छा आइडिया है रिपोर्टर वाला। क्यों? रिपोर्टर बहुत तेज तेज बोल रहे होते हैं और बहुत जबरदस्त उनकी वोकैबुलरी होती है। तो अगर आप चाहें तो किसी अखबार का कोई आर्टिकल लेके भी उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उसकी फनी वीडियो बना सकते हैं, टिकटॉक पे हमें भेज सकते हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इट ओनली डिपेंड्स हाउ मच यू आर पुटिंग इनटू द बोल, राइट। आप कितना गुड़ डाल रहे हैं, कितना आपने मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट है आस्किंग टूरिस्ट अबाउट द डिफरेंट ब्यूटीफुल व्यूज इन कश्मीर। वाओ, अच्छा, ये एक बड़ा जबरदस्त सी इन्होंने बात की है। तो इसमें मैं थोड़ा सा चाह रही थी कि आज कोई चेंज चीज एक्टिविटी क्लास में कराऊं। तो आई एम टेलिंग यू सम ऑफ द वर्ड्स which you can use to tell about some kind of like beauty places, शहरों, जगहों या बिल्डिंगों को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो आई एम जस्ट चेंजिंग द ओके। तो कैन यू सी द माय, आपको नजर आ रहा है? मैं पेंट एंड ब्रश की स्क्रीन खोली, इज इट विजिबल एवरीबॉडी? ये चैट में बताइएगा मुझे, इज माय पेंट एंड ब्रश स्क्रीन विजिबल टू एवरीबॉडी? यस ईशा वजीहा प्लीज, is my paintbrush screen visible? जी नासिर साहब, hello, okay, okay, no, nobody is able to see, okay fine, okay right, then okay, अच्छा देखिए यहाँ पे मैं कुछ am I able to write anything? No, okay, कुछ वर्ड्स है आपके पास, मैं आपको वो कुछ वर्ड्स बता रही हूँ। ओके, कुछ वर्ड्स बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पहला वर्ड हमारे पास है सीरीन, SERENE। प्लीज अगर लिखना चाहे तो आप सिर्फ वर्ड को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सीरीन का मतलब एक ऐसी जगह होती है जो बहुत ही ज्यादा पुरसुकून होती है। द साइट ऑफ द विलेज इज वेरी सीरीन, यानी इतना सुकून मिलता है उसको देख के, ठीक है। सिमिलरली आप कह सकते हैं स्टनिंग। स्टनिंग का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। द स्टनिंग व्यूज ऑफ द कश्मीर, द स्टनिंग व्यूज ऑफ कश्मीर आर स्टिल इन माई मेमोरीज। आज तक मैं उन कश्मीर के उन खूबसूरत उनको याद करता हूँ जो सीन मैंने देखे थे, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड लाइक अनस्पॉइल्ड, अनस्पॉइल्ड, UNSPOILED। स्पॉइल्ड का मतलब होता है खराब किया हुआ।
अनस्पॉइल्ड का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि खराब ना हुई हो, यानी बेहतर या अच्छी हालत में हो, अच्छी चीज। ओके, तो हम यूज कर सकते हैं अनस्पॉइल्ड का वर्ड के इसको एज अ पॉजिटिव किसी खूबसूरती की जगह के लिए हम कर सकते हैं द प्लेस वॉज अनस्पॉइल्ड, मतलब वहां पे कोई वो नहीं था, कोई लोगों ने उसको बर्बाद नहीं किया था, वो अनटच थी। ठीक है, यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड प्रिस्टीन। प्रिस्टीन, PRISTINE। प्रिस्टीन का मतलब होता है शफाफ या साफ सुथरा, कचरे के बगैर, एनीथिंग इन अ वेरी गुड कंडीशन और विदाउट ट्रैश और विदाउट यू कैन से लिटर, कचरे के बगैर। ठीक है, द प्रिस्टीन लेक, the pristine lakes. And you can also say my brother is wearing a white pristine shirt on his interview day. व्हाइट प्रिस्टीन मतलब धब्बे से पाक, किसी भी गंदगी से पाक। ठीक है, तो इसके अलावा वाइब्रेंट, वाइब्रेंट भी बहुत अच्छा वर्ड है। ये मैं आपको ये हेल्पिंग वर्ड्स बता रही हूँ, जो आपका लास्ट वाला जो सिस्टम है ना, आस्किंग टूरिस्ट अबाउट द डिफरेंट ब्यूटीफुल व्यूज इन कश्मीर, तो इसमें ही आपको हेल्प करेंगे। आई एम रिपीटिंग, मैंने क्या वर्ड बताया आपको? सीरीन, स्टनिंग, अनस्पॉइल्ड, प्रिस्टीन एंड वाइब्रेंट। ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत सारे वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लैंडमार्क, कोई जगह बहुत मशहूर है, तो आप उसको कह सकते हैं मैजेस्टिक, आइकॉनिक। ठीक है, और इसके अलावा आप किसी जगह को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो जगह क्या थी? स्पेशियस थी, यानी वहां पे गुंजाइश बहुत ज्यादा थी, या ओवर क्राउडेड थी, यू कैन ऑल्सो से, या रेनॉइड, रेनॉइड मतलब होता है मशहूर। ठीक है, तो ये बहुत सारी वोकैबुलरी है जिनको आप यूज करके यू कैन जस्ट राइट डाउन वेरी good questions from for the tourists to differentiate or to tell about the different beautiful views in Kashmir, right? Okay, so now I'm moving ahead. Now, repetition and irritation with always. Like when we are using the word always with continuous tense, it expresses the idea that something is irritating or shocking, often happens on negative emotions. जब हम always का वर्ड यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं? ज्यादातर ये अगर हम continuous के साथ always का वर्ड मिला देते हैं तो ज्यादातर, यानी it's not always, ठीक है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये नेगेटिव इमोशन को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज ऑलवेज कमिंग लेट टू द क्लास, वो हर हमेशा ही लेट आती है, आ रही होती है। ठीक है, सत्या इज ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी, सत्या हमेशा ही मुझे डिस्टर्ब कर रही होती है या तंग कर रही होती है या मेरा ध्यान हटा रही होती है। यू आर ऑलवेज टॉकिंग विद अदर्स इन द क्लास, तुम क्लास में हमेशा दूसरों से बात करते रहते। Students are always complaining, right? So this is a normal idea. It's not 100%, but 95% times when we merge this word always with present continuous tense, so it emphasizes or it expresses the idea that something is irritating or shocking, or often it happens again and again, and it gives a negative emotions. Negative बात हो, my child is always crying for sweets, my husband is always complaining about me. Okay, so you can use a lot of subjunctions. Okay, so this is the next thing, right? Now we've got some questions, kind of thing. When we are asked questions in a informal environment, so we prefer to answer in a small, like the shortest way, you must say. For example, are you studying now? Yes, I am. No, I'm not. No, I'm not. Okay. Is she going to school? Yes, she is. No, she isn't. She isn't. Are they painting the house? Yes, they are. No, they aren't. No, they aren't. Okay. Now I'll be asking questions and you all have to answer the same way I have told you, right? Okay. Rizwan Sahab, now it's your turn. Is she talking with you these days? पहले आपने yes में जवाब देना है, फिर आपने no में जवाब देना है। जी रिजवान साहब। जी रिजवान साहब, please unmute yourself. जी जी, I think Rizwan is having some problem with his connection. So now I would like Nasir Sahab. Nasir Sahab, please इसको sentences को पहले yes में और फिर no में आपको जवाब देना है। मैं सवाल पूछिए, you have to give me the answers only, right? Okay. Okay. Is she talking with you these days? Yes, she is talking with me these days. Okay. And if you want to negate the answer, like if you want to She- say no, She is not talking with me these days. she isn't. Don't say not. She She isn't. is- Okay. 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 Are you watching Hollywood movies?
Yes, I am watching Hollywood movies. Okay, all right. And if you want to negate, No, I'm not watching Hollywood movies. very good. Acha, am I always troubling you? Uh, Yes, yes, you always troubling me. By asking questions in the class? Okay, okay. And if you want to negate, sir, then how will you answer? No, you are not always troubling me. Okay, this is better. This sounds better. Okay. Next one is Arun preparing for the IELTS exam? Yes, Arun is preparing for the IELTS exam. Okay, negative. No, Arun isn't preparing for the IELTS Excellent, exam. excellent. Okay, are we going for a party tonight? Yes, we are going for a party tonight. No, Okay. we aren't. No, we aren't going for a party वेरी गुड tonight. एक्सीलेंट ठीक है समझ में आया किस तरह हम शॉर्ट टाइप के आंसर को वो करते हैं ठीक है ओके नाउ वी हैव गॉट दिस वेरी स्ट्रेंज टॉपिक व्हिच इज लाइक नॉट टॉट इन नॉर्मल स्कूल्स जो कि बताना चाहिए था कि मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब one are action verbs and the others are stative verbs ठीक है action verbs वो verbs होते हैं जो कोई action show करते हैं for example I'm singing I'm dancing I'm eating I'm sleeping I'm going around but stative verbs जो होते हैं वो ऐसे actions को show करते हैं जिनमें कोई action नहीं होता for example अगर मैं बोलूं कि dreaming तो ड्रीमिंग के लिए मुझे कुछ मूवमेंट की जरूरत नहीं है नफरत या किसी से नफरत कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे हिलने जुलने की जरूरत नहीं है बस मैं दिल में ही नफरत कर रही हूँ मैं अगर किसी को देख रही हूँ ठीक है या मुझे कोई चीज चाहिए या मैं कोई चीज समझ रही हूँ या मैं किसी पे यकीन कर रही हूँ आप समझ रहे मेरी बात आप सब पे क्या कहना चाह रही हूँ तो इस किस्म के वर्ब्स इनको हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं STATIV स्टेटिव वर्ब्स जिनके आगे ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट है वैसे तो हम माशाल्लाह से अंग्रेजी की वो कर देते तो हम यूज कर लेते हैं नॉर्मल हमारी लैंग्वेज में हम ये वर्ड्स यूज करते हैं लेकिन बेसिकली ये वर्ड्स गलत होते हैं इन वर्ड्स के साथ कभी भी ING यूज नहीं करते ठीक है और वो वर्ड्स कौन कौन से नीड आप बोलेंगे शी नीड्स इट आप ये नहीं बोलेंगे शी इज नीडिंग इट कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि आप इसके साथ आप सिर्फ ING we can't use ING with these verbs understand हम कहते हैं ना I'm understanding what you are saying but you see this is wrong you can't say that you must say I understand the lesson I understand the speech which you have delivered right similarly want he wants some money he's wanting some money wrong okay love she loves you so much she loves you much okay she's loving you wrong right I hate you I hate her correct but I'm hating her wrong I see you correct but I'm seeing you wrong you trust me wrong she is trusting you wrong okay ING आप इन वर्ब्स में नहीं लगाएंगे and what is the reason is they are stative verbs I think the concept is clear और अगर नहीं है तो you can go on YouTube and search this what are stative verbs and you will have a lot of examples of these stative verbs right so I think it's clear okay now we do some practice okay जी तो practice के लिए कुछ सवालात हैं हमारे पास के what are you doing now what is your child doing now what are you doing these days what are you watching on TV these days what are you planning for the vacations अगर आप इन जुमलों को गौर से देखें तो इसमें हमें जो फर्स्ट यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस था स्टार्टिंग टू सेंटेंसेस में वो दिया गया है वो क्या था इट शोज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ ठीक है जो इसके बाद की जो नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस है इसमें हमने क्या पढ़ा था इट्स शोइंग लॉन्ग टर्म एक्शन व्हिच इज इन प्रोग्रेस okay temporarily in progress but it will complete in long term time right so ये जो दो बीच के सवाल आते हैं what are you doing these days जाहिर सी बात है आप बोलेंगे यार I'm starting medical तो आप कल तो डॉक्टर नहीं बन जाएंगे ना इट विल टेक टाइम सिमिलरली यू आर वाचिंग मूवी व्हाट आर यू वाचिंग दीज डेज इसका मतलब ये है कि एक सिलसिला आप कहें कि मैं ये ड्रामा सीरीज देख रहा हूँ मैं ये इस तरह की मूवीज देख रहा हूँ तो ये एक लंबा एक्शन है ठीक है एंड व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर द वेकेशन ये ऑब्वियसली जो लास्ट वाला हमने किया था यूज ये वाला यूज है ठीक है मैं एक दफा और आपको रिपीट करवा देती हूँ लास्ट जैसे हमने स्लाइड्स की थी इनको मैं एक दफा क्विक वे में रिपीट करा देती हूँ ताकि आपको यहाँ से ठीक है हमने पहला जो किया था ठीक है जी कहाँ से यूज ठीक है पहला हमने क्या था टू शो समथिंग इज हैपनिंग नाउ ठीक है जी ये हमने किया था फिर सेकंड हमने यूज किया था टू शो लॉन्गर एक्शंस इन प्रोग्रेस नाउ टेम्परेली हैपनिंग जिसमें डीज डेज का इस्तेमाल हुआ था और थर्ड हमने किया था टू एक्सप्रेस अ प्लान्ड एक्शन इन नियर फ्यूचर
तो आप अगर मेरी इस वाली नेक्स्ट वाली स्लाइड पे, जो अभी जिस स्लाइड पे हम हैं उस पे जाएंगे, तो यू विल से कि देखिए जो लास्ट वाला सेंटेंस है ना हमारा, वो यही कह रहा है, क्या कह रहा है, व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर वेकेशंस, व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर वेकेशंस। ठीक है जी, इज इट क्लियर? ठीक है जी, okay. Now there is a small kind of exercise in which you have to put is mr. It's a very simple one. I am doing it in a quick way because you see at the end I think you have got another homework to do. So I'm quickly doing it. I'm watching a reality show. My favorite team is playing. याद रखिए टीम क्या है, टीम जो है कलेक्टिव नाउन है, यानी कि टीम में होते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन हम उसे एक कंसीडर करते हैं। जैसे गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, ठीक, क्या होता है एक ही है लेकिन उसमें बहुत सारी चाबियां होती है। ठीक है, तो माय फेवरेट टीम इज प्लेइंग वेल। समवन इज स्विमिंग इन द सी। समवन है यानी कोई एक बंदा, समवन का मतलब कोई एक बंदा, तो हमने इज लगाया। टू पीपल आर कुकिंग डिनर ऑन द बीच। टू पीपल आर, रिमेंबर पीपल्स नहीं होगा, पीपल होगा। ठीक है, और एक और मिस्टेक जो नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं, दे प्रोनाउंस एज प्यूपल। प्यूपल कोई वर्ड नहीं होता, याद रखिए। प्यूपल जो है ना स्टूडेंट्स को कहते हैं, PUPIL, प्यूपल। हाउ मेनी पीपल्स डू यू हैव इन योर क्लास, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? ठीक है, एंड पीपल आप इससे याद रखिए, पीपल के दरख्त के नीचे लोग खड़े हैं, पीपल। ओके, टू पीपल आर कुकिंग dinner on the beach. We aren't watching a soap opera, right? I am not, yeah, I am not doing my homework. Mom isn't reading, your mom is reading a magazine. My brother isn't listening to the radio. Dad isn't cooking dinner. Tara is talking by the phone. ठीक है, फोन के जरिए वो बात कर रही है। ठीक है, Joe is playing on the computer. Who is watching TV? Who is watching telly? याद है हमने किया था, टेली का वर्ड किया था फॉर टेलीविजन, ब्रिटिश। ओके, Tina is doing grammar exercises. I am eating a pizza. We are sitting in the classroom. Okay, I hope you will do, please do this practice and just repeatedly see this video if you have any confusion. Okay, now these I will try to ask you people. आप लोग से पूछूंगी मैं, ठीक है जी। So I'm starting with the, okay जी, so I'm starting with the दुआ। पहले दुआ आप करेंगी बेटा। I dash not writing an email. I am writing an email. हाँ बेटा, लेकिन यहाँ नॉट लिखा है ना, तो आपको नेगेटिव बनाना है। I am not writing an email. वेरी गुड। 17 बताइए। Army, एमी। Amy are not go to school today. नो, दो बड़ी मिस्टेक्स। नंबर 1, एमी इज सिंगुलर, एक लड़की का नाम एमी है, और दूसरा हम कॉन्टिन्यूअस टेंस कर रहे हैं, तो गो कहां से आ गया भाई, आईएनजी कहां गया जी? मैडम दुआ, Yes, sir. जुमला करेक्ट कीजिए, नेगेटिव जुमला बनाना है, गो में आईएनजी लगाएंगे और एमी के साथ इज लगाएंगे। आप बताइए। Amy is not going to school today. वेरी गुड, ब्रिलियंट। ओके मुकद्दस, जी मुकद्दस बेटा, आप मुझे बताइए 18 and 19। Okay. We aren't have fun today. My team is नो not नो नो winning. नो नो नो, मुकद्दस क्या मिस्टेक कर रहे हो, खुद सोचो। नंबर 18 में what mistake you are making? We aren't having fun today. Very good, now it's correct. Okay, 19. My team isn't winning the match. My team isn't winning the match. Okay, thank you so much जी। रिजवान साहब 20 और 21 आप करेंगे। My parents are driving to work now. वेरी गुड, बेहतरीन। ओके, 21। अब ये इंट्रोगेटिव है रिजवान साहब, तो आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लाना पड़ेगा और फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर आईएनजी फॉर्म आएगी जी। एक मिनट। आर से शुरू होगा, आर दे, We they आर दे, आर दे। are they not reading magazine?
देखिए नॉट तो लिखा नहीं है, आपको पॉजिटिव जुमला बनाना है अफर्मेटिव का। आर दे रीडिंग मैगजीन्स? रिपीट आफ्टर मी रिजवान साहब। आर दे रीडिंग मैगजीन्स? यस दे आर। वेरी गुड, ओके। अब एक दफा और तेजी से इस जुमले को पढ़िए। आर दे रीडिंग मैगजीन्स? यस दे आर। वेरी गुड, 20 सेकेंड कीजिए सेम पैटर्न पे। आर यू लर्निंग इंग्लिश? यस आई एम। वेरी ब्यूटीफुल। 23rd। हेलन। हेलन नेम है मिस? जी जी, हेलन केलर नहीं सुना आपने नाम? जी हेलन नाम है, बिल्कुल लड़की का नाम है। इज हेलन? शी हेलन इज 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 हेलन? इज हेलन इज हेलन इज राइटिंग ए लेटर? नो 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 शी नो इज नो, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। नॉट। आराम से, शी तसल्ली इज से। पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया इज, फिर आपने सब्जेक्ट लगाया हेलन, फिर आपने आईएनजी फॉर्म लगाई राइटिंग, और फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाया अ लेटर। अब पूरा एक सीक्वेंस में बोलिए 23rd जुमले को। इज इज हेलन? हेलन राइटिंग ए लेटर? नो शी इज इजंट। हेलन राइटिंग? नो शी इज नो शी इजंट। वेरी गुड, जबरदस्त, बेहतरीन। थैंक यू सो मच रिजवान साहब। ओके जी, नाउ वी हैव गॉट नासिर साहब। लास्ट 2 सेंटेंसेस आप करेंगे सर, 24 एंड 25 जी। Are you learning English? No, she सर 24 एंड 24, 25। 24, 24. यस, Is Sarah is playing the guitar? Yes, she is. दोबारा रिपीट कीजिएगा। Is Sarah playing the guitar? Yes, she is. वेरी गुड, लास्ट वन। We are not playing basketball. वेरी गुड, जबरदस्त, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके जी, अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्लाइड है ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है वो चीजें जो हमें करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल आप ऑब्लिगेशंस को ये भी ले सकते हैं, जैसे नमाज पढ़ना है, और ये क्या अपने आप को साफ रखना, ये बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी की क्या है, ऑब्लिगेशंस है, ठीक है। तो थिंग्स दैट आर नेसेसरी टू डू और टू गिव एडवाइस। ऑब्लिगेशंस क्या होती है, वो काम जो हमें मस्ट करने हो, हम उसके लिए, ठीक है, ऑब्लिगेशंस का वर्ड यूज करते हैं। इसके लिए दो तरह के मॉडल आप यूज कर सकते हैं, मस्ट, मजंट। मस्ट यानी पॉजिटिव के लिए, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस के लिए, और अगर नॉर्मल है तो आप शुड भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, आप कह रहे हैं यार यार यू शुड लीव दिस जॉब, तुम्हें ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो जहनी मरीज बन गया अपनी जॉब की वजह से, तो आप उसको क्या बोलेंगे, यू मस्ट लीव द जॉब, ठीक है। तो मस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग वर्ड है, 100% है, जबकि शुड जो है वो 70% है, ठीक है जी। तो इस चीज का तो स्ट्रक्चर बोथ का सेम है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस शुड, यानी कि ईदर यू हैव टू यूज मस्ट if you have a very strong obligation, then you will use must. But if your obligation is mild, mild का मतलब होता है, आपने देखा होगा बच्चों के शैम्पूओं के ऊपर लिखा होता है माइल्ड शैम्पू। माइल्ड का मतलब होता है ऐसी चीज जिसका असर बहुत ज्यादा तेज नहीं हो, कम हो, ठीक है। जैसे नॉर्मल शैम्पू में बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं, बट द बेबी, खासतौर पे जॉनसन्स बेबी वगैरह पे आप कभी देखें तो यू विल सी माइल्ड, माइल्ड लिखा होता है। इवन फ्लेवर्स में भी लिखा होता है, जो हॉट सॉस होते हैं उसमें लिखा होता है माइल्ड सॉस, हॉट सॉस, वेरी हॉट सॉस, इट्स लाइक दैट, ओके। तो माइल्ड का मतलब होता है दरमियाना बीच का। सो लुक एट, प्लीज डू मेमोराइज दिस स्ट्रक्चर, बिकॉज वी आर गोना वर्क ऑन दिस स्ट्रक्चर इन द अपकमिंग स्लाइड्स। should, subject plus either must or should, and then base verb यानी first form of the verb, ठीक है। Okay जी, now here we've got a lot of different words. For example, must, mustn't. Must not की short form क्या है, mustn't. Please आप लोग सब मेरे बात repeat कीजिए, mustn't. Must not is equal to mustn't, and should not is equal to shouldn't. Shouldn't, shouldn't, shouldn't. Okay, everybody, is it clear? Okay, now I'm reading these sentences for all of you, and then we'll see what practice we can do it. Now first of all, हम उन चीजों की बात करें जो कि हमारे लिए हर हाल में हमें देना या हर हाल में हमें करना चाहिए, ओके। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस, फॉर एग्जांपल, यू मस्ट एडमिट योर मिस्टेक, तुम्हें अपनी गलती जरूर माननी चाहिए। वी मस्ट टेक द TIN नंबर, हमें हमेशा TIN नंबर, आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ टेक्स्ट kind of abbreviation, I'm not very familiar with this. Government must consider the tax rates. Government को क्या जरूर करना चाहिए कि वो बिला वजह का टैक्स आवाम पे बोझ ना डाले।
यू मजंट यूज ड्रग्स, आपको कोई भी नशा आवर दवा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अच्छा देखिए, जब when you will be doing the Urdu translation, तो in both the sense you have to say नहीं चाहिए, यानी mustn't का मतलब भी नहीं चाहिए और shouldn't का मतलब भी नहीं चाहिए। must का मतलब है जरूर करना चाहिए और should का मतलब भी है जरूर करना चाहिए, बट उनकी इंटेंसिटी में कमी है। मस्ट जो है वो आप किसी से, अब होते हैं ना बाजू, आप बच्चों से कहते हैं कि भाई ये काम कर दो, वो बच्चे करते हैं या नहीं तो इट्स ओके, बट कुछ काम ऐसे हैं जो आप बच्चों से हर हाल में करवाते हैं, ठीक है। तो मस्ट और मजंट और शुड और शुडंट दोनों के लिए यही है कि दोनों का तर्जुमा एक ही होगा, चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन उनकी इंटेंसिटी या शिद्दत में फर्क होगा, ठीक है। इफ आई एम सेइंग यू मजंट यूज ड्रग्स, तो ये मैं उसको प्यार से नहीं बोल रही कि भाई तुम्हारा दिल चाहता है तो तुम ड्रग्स छोड़ दो और तुम्हारा दिल चाहता है तो तुम पीते रहो, नो। मजंट का मतलब है कि यू आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर दैट ही शुड लीव दैट थिंग, ठीक है। यू मस्ट नॉट यूज ड्रग्स, तुम्हें इस्तेमाल करनी ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। निमल मजंट यूज फिल्थी वर्ड्स, फिल्थी कहते हैं गंदे अल्फाज, अब्यूजिव लैंग्वेज, बैड लैंग्वेज, स्लैंग लैंग्वेज, ठीक है। तो निमल को गलत जबान या गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अगेन आई एम टेलिंग कि शुड नॉट की भी, अगर मैं ये वर्ड शुड नॉट के साथ बोलूंगी तो सेम ट्रांसलेशन होगी कि भाई निमल को, निमल शुडंट यूज फिल्थी वर्ड्स, निमल को बुरे लफ्ज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन ये क्या है, ये एक एडवाइस जो है ना थोड़ी सी शिद्दत कम है इसकी, ठीक है। आई मस्ट कंट्रोल माई एंगर इन पब्लिक प्लेसेस, मुझे हर हाल में अपने गुस्से को जो है ना वो पब्लिक प्लेसेस यानी कि जहां मैं लोगों के क्राउड में होता हूँ वहां मुझे कंट्रोल है। वी मजंट टेक ब्राइब, ब्राइब, ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत, ठीक है। हमें रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, याद रखिए, ठीक है। ये बहुत अच्छा वर्ड है ब्राइब, ब्राइब मतलब रिश्वत देना, ठीक है, और लेना, टेक और गिव, ब्राइब, इसका हम वर्ब बनाते हैं टेक या गिव से, ठीक है। वी मजंट टेक ब्राइब। अब ये मजाक की बात नहीं है कि आप किसी को कह रहे हैं कि भाई ठीक है आपको रिश्वत नहीं लेना चाहिए, उससे सुनो, आप उसको जोर देंगे भाई तुम्हें रिश्वत नहीं लेना चाहिए, सही काम नहीं है, ओके। सिमिलरली शुड जो है वो या शुडंट माइल्ड किस्म की ऑब्लिगेशन या माइल्ड किस्म की रिकमेंडेशन को कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशन सेम होगी, याद रखिए उर्दू में, यू शुडंट ब्लेम अदर्स, तुम्हें दूसरों को इल्जाम नहीं देना चाहिए, भाई तुम कामयाब नहीं हुई तुमने दूसरों पे डाल दिया। टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आई, आपने कहा यार टीचर पता नहीं कैसी थी, समझ में ही नहीं आई, हमने तो छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपने वो उसकी कोशिश ही नहीं की जो टीचर आपको करवाना चाह रही थी, ठीक है ना। ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप एक डॉक्टर के पास आए और उसको 5,000 रुपए फीस देते हैं, वो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे और वो प्रिस्क्रिप्शन आप दवाई खरीदें और एक दराज में जाके डालते हैं और 1 महीने बाद आके अपने दोस्त से बोले यार पता नहीं कैसा डॉक्टर था, ठीक ही नहीं हो रहा मैं। भाई जब आप दवाई ही नहीं खाएंगे, जब आपने उसके नुस्खे पे काम ही नहीं किया तो आप ठीक कैसे होंगे। तो यही केस है इंग्लिश लर्नर्स के साथ कि दे डोंट वांट टू पुट देयर एफर्ट, वो अपना कोई कोशिश नहीं डालना चाहते, वो चाहते हैं कि हम टीचर की आधे घंटे 1 घंटे की इंग्लिश की सुन लें और दूसरे दिन हम उसी तरह बोलने लग जाए। टीचर की इंग्लिश के पीछे जो मेहनत है, टीचर ने जितना टाइम दिया है उस चीज को, वो आपको नजर नहीं आ रही, आपको सिर्फ टीचर नजर आ रही है कि वो बोल रही है वाह जबरदस्त बोल रही है, ठीक है। तो कोशिश जो है ना वो आपको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। तो यू शुडंट ब्लेम अदर्स, आपको दूसरों को इल्जाम देने की जरूरत नहीं है, नहीं देना चाहिए अपनी गलती के लिए, ओके। वी शुड सैनिटाइज अवर हैंड्स एवरी टाइम, ये कहाँ पे, कोविड के जमाने में हर जगह लिखा होता था, दीवारों पे, छतों पे, खिड़कियों पे, दरवाजों पे, क्या क्या आपको सैनिटाइज, सैनिटाइज का मतलब क्या होता है, जरासीम से महफूज कर लेना, ठीक है, या साफ कर लेना। द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द प्राइस ऑफ गुड्स, अब देखिए ये बात हम जर्नली कहते हैं भाई गवर्नमेंट को चाहिए वो जो है ना रिड्यूस करे चीजों, गुड्स का मतलब यहाँ पे क्या है, अच्छा नहीं है। देखिए वुड जैसे एक वर्ड है WOOD, वुड, वुड का मतलब होता है लकड़ी, लेकिन अगर उसमें एस लग जाए तो वो उसका सेंस होता है वुड्स, वुड्स मतलब जंगल। सिमिलरली गुड का मतलब होता है अच्छा, लेकिन अगर गुड आप एस के साथ बोलेंगे तो उसका मतलब होता है सामान, गुड्स, अशियाए, आम इस्तेमाल की चीजें, ठीक है। यू शुडंट ड्रिंक रैक्ट, मैंने आपको पहले बताया था, काइंड ऑफ अ माइल्ड वाइन व्हिच इज नॉर्मली यूज इन सम ऑफ द फॉरेन कंट्रीज। नमीशा, नमीशा शुड बिहेव वेल इन पब्लिक प्लेसेस, I shouldn't get angry, we should do our work honestly, mild and obligation, right? I think you are getting the difference कि किस तरह हम उसका डिफरेंस करें। अच्छा अब फिर वही बात आती है, ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि इन्होंने एक मैनेजर साहब को लिया है और चारों तरह के जो मॉडल्स हमने अभी किए हैं, शुड, शुडंट, मस्ट, मजंट, उसको आपको प्रैक्टिस करके बताएं। फॉर एग्जाम्पल मैनेजर को क्या करना चाहिए, एक लो लेवल के उस पर क्या नहीं करना चाहिए, क्या जरूर करना चाहिए और क्या जरूर नहीं करना चाहिए,
ओके, मैनेजर शुड वर्क ऑनेस्टली, ठीक है, उसको ऑनेस्टी से, ईमानदारी से काम करना चाहिए. मैनेजर शुडंट बिहेव रूडली विद स्टाफ, उसको स्टाफ के साथ गलत रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए, ठीक है. मैनेजर मस्ट मेंटेन रिकॉर्ड्स. देखिए, अगर वो ऑनेस्टी से काम नहीं करता तो भी ऑफिस चलेगा, वो अगर स्टाफ से रूडली बिहेव करता है तब भी चलेगा, लेकिन अगर वो अपने काम का कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखेगा कि किस कस्टमर को कितने पैसे देने हैं, या आपने कितना माल बेच दिया, या वट जो भी काम जिस तरह का उस नौयत के हिसाब से, तो ऑफिस बंद हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे हमने इसलिए मस्ट का वर्ड यूज किया. मैनेजर मस्ट मेंटेन रिकॉर्ड्स. और क्या चीज उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए? मैनेजर मस्ट नॉट डू फेवर्स एट वर्क. फेवरेटिज्म, ठीक है. फेवरेटिज्म क्या होता है? नार्सिसिज्म, ठीक है. फेवरेटिज्म, ओ सॉरी, नेपोटिज्म. नेपोटिज्म क्या होता है कि आप अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों को आगे लाओ. अपने भतीजे को रखवा दिया, वो लेट आ रहा है तो उसकी आपने लेट नहीं लगाई, वो छुट्टी कर रहा है तो उसकी प्रेजेंट लगा दी पीछे से, तो ओके. तो ये क्या कहलाएगा? फेवर देना. किसी को, आपकी कोई फ्रेंड है या आपको कोई दोस्त है, आपने उसको जॉब पे मैनेजर फेवर दे देता है, दूसरों को नहीं देता, तो ये बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इससे पूरा ऑफिस का माहौल खराब होगा, ठीक है. अच्छा, इसके बाद आप इसी चीज को, अब ये बहुत एक तरह की स्लाइड है विच यू ऑल शुड डू प्रैक्टिस, लाइक मैं भी शुड का वर्ड यूज करी, बट आई शुड नॉट यूज शुड, आई शुड यूज, you all must practice this slide. Note down the slide number. It is slide number 22, as it is already provided to you on the WhatsApp group. कि अब आप क्या करेंगे? टीचर को लेंगे. टीचर लिया. टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर should be regular in school, right? Teacher shouldn't behave rude with the students, right? Teacher must know his or her subject well. उसको अपनी उसमें क्या महारत हासिल होनी चाहिए, वरना कैसे पढ़ेगा? और टीचर्स मजंट क्या, शुडंट क्या होना चाहिए? शुडंट डू हॉलीडेज, क्योंकि अगर वो छुट्टी करेगा तो पढ़ाएगा कैसे? इसी तरह आप स्टूडेंट्स, पॉलिटिशियन, रिच कंट्रीज, वर्कर्स, इन सबको लगा के यू कैन मेक अ प्रैक्टिस ऑफ अराउंड 1.5 आवर योरसेल्फ. आप एआई यूज करें, आप गूगल यूज करें, but please do that recommended 1.5 hour time to the class, right? Okay जी. Next हमारे पास क्या है जी? Next we go, what should be done? क्या होना चाहिए? Pick up any one of your favorite scenario. इस scenario 3 दिए हुए, इसमें से आप किसी से भी क्या करें? Scenario को pick करें और उसके बाद उसको वो करें. कैसे? Your friend is feeling stressed about exams. आप क्या करें? उसको किस तरह आप कहेंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है. योर ब्रदर और सिस्टर वांट्स टू इंप्रूव हर इंग्लिश स्किल्स. आप उसको क्या कहेंगे? तुम्हें क्या चीज करनी चाहिए? क्या माइल्ड उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे, एडवाइस देंगे, और क्या जरूर देंगे कि तुम्हें जरूर इंग्लिश लोगों को सुनना चाहिए, ये तुम्हें जरूर करना पड़ेगा. तुम्हें रोज वीडियोस देखनी चाहिए मालूमाती इंग्लिश की, ठीक है. लेकिन आप कुछ उसमें क्या कहते, तुम्हें रोज बोलना चाहिए, ठीक है. ये एक माइल्ड यू शुड, ठीक है. मस्ट और शुड दोनों का कॉम्बिनेशन रहेंगे. योर पेरेंट्स आर इनडिसाइसिव वेदर. इनडिसाइसिव का मतलब ऐसा बंदा होता है या ऐसे लोग होते हैं जो कि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे होते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन. तो इनके पेरेंट्स क्या इनडिसाइसिव है, फैसला नहीं कर पा रहे. डिसीजन से वर्ड निकला इनडिसाइसिव. whether to go to another city for some urgent work or not because of the curfew. कर्फ्यू लगा हुआ है तो वो उनको समझ में नहीं आ रहा कि जो उनको अर्जेंट काम है क्या उनको वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहते. So there are 3 different scenario out of which you have to pick one, and using those models which you have done in the class, like should, shouldn't, mustn't, you have to make a lot of sentences and do the practice, right? What must be done, what shouldn't be done. Now here again you've got 3 different situations in which you have to use the words must. For example, you are a principal telling the discipline rules to the students in a school. So you will use you all must wear clean uniform. You all must come to the schools in proper uniform. You all must put on polished shoes. You all must bring your copies. तो आप क्या कर रहे हैं? इस तरह के must के साथ दे रहे हैं क्योंकि इनके बगैर आपका गुजारा नहीं है. At the library, you are a librarian giving instructions to the readers regarding the rules of the library. क्या रूल्स हो सकते हैं लाइब्रेरी में? यू मस्ट not talk to anyone in the library. You must stay silent. You must take one book at a time. You must sit at your place without disturbing others. You must not eat anything in the library. You must not drink anything in the library. You must not smoke in the library. You must not disturb any of your colleagues. Okay? Or you must not laugh. You must not giggle. Okay? Gossip. ये बहुत सारी चीज हो सकती है. What you are a flight attendant. देखिए सारे रोल प्लेस हैं.
ये सारे रोल प्लेज है जो आप क्या जो है ना खुद इन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एआई की मदद से कोई स्ट्रिप लिखिए और फिर उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। यू आर द फ्लाइट अटेंडेंट गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द पैसेंजर जस्ट बिफोर फ्लाइट अबाउट द टेक ऑफ, यानी कि फ्लाइट क्या होने वाली है, टेक ऑफ होने वाली है, और आप क्या करते हैं, आप फ्लाइट अटेंडेंट है तो आप क्या करेंगे, अपना ऑक्सीजन मास्क लगा लीजिए, अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए, अपने टिकट्स निकाल लीजिए अगर आप बस में, एंड ब्ला ब्ला। ओके, नाउ देयर इज अ होमवर्क दैट यू हैव टू express yourself in 30 seconds or 1 minute video or audio, the sort of problems you are generally facing in land and how are you are trying to overcome those problems। कि आपकी जिंदगी में देखिए यहाँ पे बड़ी अच्छी सी पिक्चर इन्होंने लगाई हुई। if you study this picture in detail, there's a man who is holding that who is willing to light up this bulb and he is having a question is in mind how। तो ये अगर इस स्विच को इससे कनेक्ट कर देगा तो क्या हो जाएगा, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली ये आपसे ही कह रहे हैं कि आप घर पे प्रैक्टिस करें 1 मिनट तक वीडियो में या शीशे के सामने देख के, या अपनी किसी भी पार्टनर, देखिए पार्टनर बनाना इज वेरी गुड व्हेन यू आर लर्निंग इंग्लिश, सो पार्टनरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप 30 सेकंड की एक वीडियो बनाए या 1 मिनट की बनाए, उसमें वो प्रॉब्लम्स बताएं जो कि आजकल आप फेस करें और उनका हल के लिए आप क्या चीज निकाल रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट अल्हम्दुलिल्लाह टुडेज स्लाइड्स एंड आई वाज विलिंग टू जस्ट रिवाइज द प्रीवियस वोकैबुलरी। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो कल की वोकैबुलरी अगर आप में से कोई जो है वो बता सकता है, ये शेयर कर सकता है, तो आई विल लव टू। लाइक ये हमारी जो है ना वो है, कौन सी स्लाइड है, दिस इज अवर 13th डे ना, तो मैं 12th की जो वो है वोकैबुलरी जो हमने की थी एबिलिटी वाली स्लाइड्स में, आई एम ओपनिंग दैट, उसको अब मैं आपने उसमें से कुछ पूछती हूँ तो आई सी के उसमें क्या हो सकता है, ठीक है। मुकद्दस, मुकद्दस यू आर रेडी, मुकद्दस यू आर रेडी, Yes, okay। Benign, what was the meaning of benign? ma'am. Nate, acha, benign, something which is good, very good, okay। Dilemma, dilemma, किसी सोच में रहना। कश्मकश में रहना, जैसे मैं कहूँ आई मीन dilemma whether to leave the city or continue or whether to accept the job offer or to reject it, I mean dilemma, यानी मैं कश्मकश में मुब्तला हूँ कि क्या जॉब की ऑफर कबूल कर लूं या फिर छोड़ दूं, ठीक है। ओके ओके, देन exuberant, exuberant, पुरजोश, सेंटेंस में यूज कीजिएगा मुकद्दस। I am exuberant about my studies. Very good. I'm exuberant about my profession. I'm exuberant about my studies. I'm exuberant about my about serving my country. Okay, you can say like that. Okay, इसके बाद है ephemeral. Ephemeral. Life is very ephemeral. Yes, art. RZ, very good, amazing. Thank you so much, Mukaddas. Okay, ji. So this was all for today's session. Alhamdulillah. We have. I just want everybody to please continuously repeat and practice your vocabulary. It is very important for all of you. So thank you very much. Inshallah ताला जिंदगी रही तो next session में आप सबसे मुलाकात होगी. Thank you so much. Allah Hafiz.